एप्पल का माइग्रेशन है। Yeah. Okay. So, in the beginning, I would like you to think of one example of any company you might have seen, heard, come across, which failed because of not adapting to the changing environment. Just raise your hand and share that example. You need to share the story, why that company failed because of so and so reasons. It was a great company earlier. Now it either doesn't exist or the business is meager. I think of Nokia. Nokia. Okay. Who said that? Kodak. Kodak. Nokia. Okay. Ranbaxy. Yeah. Ranbaxy. Ranbaxy का तो केस थोड़ा डिफरेंट है, वो उसका ओनर ही अंदर हो गया. Yeah. So it is Yeah. not adjust as per the market. Okay. So one of the classic examples is Nokia. Yes, Nokia was once a leader in the mobile phone industry and renowned for its durable and user-friendly phones. Remember, you can even throw, like a stone, you could throw it anywhere and still, after it broke down into pieces, you can collect and assemble and, start using again. It was that good. They failed to respond effectively to the smartphone revolution, which was led by Apple iPhone and Google's Android operating system that point of time. So they failed to respond, to the revolution. That was the reason number one. Second is stagnation in innovation. They did not innovate. They were dependent their existing software. I'm forgetting the name of that software. Symbian software they used to use in their mobile phones. They did not innovate that, and the slow adoption of touchscreen technology and the focus on outdated Symbian operating software led to a significant loss of market share with Nokia. Any other example? Anybody else? Kodak camera was one Kodak other and example. Fiat. Kodak and Fiat. Fiat. Why Fiat failed? Not pretty sure about it, but I think the model of the car, they did not change it as per the newer generation or the engine. FYI, I have worked with Fiat, and to let you know, they had worked on brilliant technologies when it comes to engine technology, like air technologies. And I'm an ardent Fiat fan, by the way. So it hurts. But why Fiat failed is because with a changing market scenario, they did not change their marketing strategy. They did not enhance their budget. They did not invest a lot in outside the market from Europe. Like outside Europe, they did not strategically made concrete plans to expand and flourish. In India, FYI, they were making around 6.5 lakh engines in a year just to supply to Maruti, and Maruti was using their engine in their 7 models when they were using diesel engine. So I can go on and on when it comes to automobile. So I'll cut the story short here. Another classic example, BlackBerry. BlackBerry was known for its secure messaging and email services. Everybody knows that. I have never used BlackBerry, but a lot of my friends have used. I'm sure many of you might have used. Anybody else used BlackBerry? Just raise your hand. Okay, Siddharth. Right. I have used. Great. So what they did was they ignored the shift towards consumer-focused smartphones. They concentrated too long on its physical keyboard devices. They had inadequate app ecosystem and failure to keep up with the evolving smartphone market again. It led to a decline in sales, and eventually, they became irrelevant. And similarly, I'll give you another example of Yahoo. And Yahoo once was a dominant player in the early days of internet, providing web search. Remember those days जब आप Yahoo Messenger use करते थे, and 90s kids would definitely relate to that, lot of good memories associated with it. You made a lot of strangers, your friends, and friends to, girlfriends and boyfriends, and then family probably. A lot of that.
But then they also fail to adapt to the changing technology and market trends, particularly the rise of Google and social media platforms like Facebook and all. They also miss the opportunities in acquisition. Like they once rejected buyout offer from Microsoft. And there were a lot of internal turmoils with frequent CEO changes as well. If you know the story, why we are talking about it? Why we are talking about this? Because the market today is a VUCA environment. What is VUCA? Volatile, uncertain, complex, and ambiguous. Ambiguous, yes. Exactly. And any organization that fails to keep up pace with such dynamic conditions is bound to, destroy. So it becomes very important that organizations adapt these changes, and the role of training and development becomes all the more important, because this particular department or this particular function in any organization is acts like a backbone, and it acts like a catalyst, to that change. Yes or no? Do we all agree? Are we here? Yeah, very true, very true. So selection of appropriate training methods at the workplace is very important, and it depends on various factors like organization का structure कैसा है, employee की strength, आपका किस मेथड से आप ट्रेनिंग करेंगे अपने ऑर्गेनाइजेशन में डिपेंड करता है कि आप ऑर्गेनाइजेशन साइज क्या है, वर्क प्लेस एनवायरनमेंट क्या है, नेचर ऑफ बिजनेस क्या है. देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स, राइट, व्हिच इज अफेक्टिंग द मेथड ऑफ ट्रेनिंग व्हिच यू चूज. So what we are going to learn today is we are going to learn about the role and importance of training method here today. Now, there are various advantages and disadvantages of any training method. जो भी आप method use करते हैं, whether it's visual or auditory or whatever, it has both advantages and disadvantages. आपको दोनों को ध्यान में रखते हुए अपने ट्रेनिंग को डिजाइन और डेवलप करके प्लान करना पड़ेगा कि कौन सा मेथड काम करेगा किस एनवायरनमेंट में और कौन सा मेथड काम नहीं करेगा. ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं. और ये बात भी है कि a training and development program brings all the employees to a higher level so that they have almost similar skills and knowledge to perform their tasks. ऑर्गेनाइजेशन में हर तरह के लोग हैं, कोई हाईली स्किल्ड है, कोई लो स्किल्ड है. ट्रेनिंग का काम ये होता है कि सबको एट पार लेके आना, बराबर लेवल पे लेके आना. यस और नो? Yes, yes, yes. Yes. Okay. And this is important. Why is it important? To bring a competitive edge, number one, to change, to adapt to the changes in the environment. So the choice of training method becomes very important. So now we'll talk about the classification approach of training methods. So training method को basically 3 से 4 categories में क्लासीफाई किया गया है. जो ट्रेनिंग मेथड है वो 4 तरीके से होते हैं. एक होता है विजुअल, दूसरा होता है ऑडिटरी, तीसरा होता है काइनेस्थेटिक, और चौथा जो है बेसिकली मल्टी मॉडल होता है जो कि मिक्स ऑफ ऑल. तो मैं सबका एक एग्जांपल देके आपको समझाऊंगा कि कैसे काम करता है. राइट? आर वी ऑन द सेम पेज एवरीबॉडी? Yes. Yes. So what we are talking here is classification and approach of training methods. So सबसे पहले let's talk about visual training. What is visual training? Think of your any training program wherein you have used a visual method to train or impart certain knowledge to your people. कोई ऐसा example आपको याद आ रहा हो जहां आपने यूज किया हो visual method? The current training program. Learning from LinkedIn learning or degree online Okay. modules completion. ऑनलाइन लर्निंग, ऑनलाइन में आप वीडियोस के थ्रू उनको ट्रेन करते हो. एनी अदर एग्जांपल? Whenever Science training. or influence, I Sorry? can give a combination whenever of we have both. learned something. It would be Yeah, distance let's learning. we can talk about both, Siddharth. However, let's just talk about visual. सिर्फ एक. हाँ नहीं, my example, the example that I'm planning to give is car driving. So I see a person driving the car and I try to imitate that person as to how he is driving the car. That's like visual learning.
if I'm not wrong. Mm, Okay, which can also Could fit be. into kinesthetics, which Could is be, like could be. I'm doing and learning. So Could it be, can. could be. No. How many of you have tried learning a new skill through YouTube? Just raise your hand. Me too. कुछ नया सीखा. Suppose PPT बनाना सीखा. I learned, designing PPTs by watching YouTube videos. Anybody else who learned any skill? Nandan, Yeah. क्या चीज? Yes. Okay. I've been training in yoga, na? So I did a lot of things. I watch it and Right. follow it. Swarnim, Ratnesh as well. Okay, they're giving thumbs up. So this is a classic example of visual learning. So for example, अभी और एक एग्जांपल देता हूं यहाँ पे. एक सॉफ्टवेयर कंपनी है जो अपने एम्प्लॉयज को नए यूजर इंटरफेस, एक डिजाइन टूल है, और नए यूजर इंटरफेस पे ट्रेन करना चाहिए. या प्राची? Okay. So like I'm a hello. Can I give an example of visual learning? Yes, please. Yes. So I'm a lecturer for management students where I use projectors. Projectors. That will be an example of visual learning for my students. Could be, yes. That was my example. Whenever an information is seen on a screen or on a projector, whether it's moving video or just a presentation, it's visual. ये कह सकते हैं. So all those classical methods of training, जैसे PPT presentation हो गया, या showing the video of any behavioral aspect could be an example of visual learning. Second, let's talk about second one now. Auditory learning. Can you think of an example before I give you an example? E-books. Classroom teaching. Podcast, call taking skills. We Podcasts. ideally, Podcast. call taking skills also. We play the call and we ask the learners to introspect on the call and understand. Audiobooks. Absolutely fantastic. Podcast. The way we are doing right now. The way we are doing right now is auditory, of course, yes. And Katie gave a very valid and relevant example in a classic one more setup example of, I wanted to, and one more example is like learning music by hearing, absolutely listening. Yeah. Great example. So we know this is another training method. तो ये method हम कब use करेंगे? Corporate environment में. For example, Katie said कि किसी को आप कॉल लेना सिखा रहे हैं, कस्टमर हैंडलिंग सिखा रहे हैं, तो आप बहुत सारे कॉल्स सुनाते हैं उनको कि ये देखो ओपनिंग ऐसे होती है, ग्रीटिंग ऐसे होती है, कस्टमर को ऐसे एम्पैथाइज किया जाता है, ऐसे सोल्यूशन दिया जाता है. सो दिस इज यूज केस और बोला एप्लीकेशन ऑफ ऑडिटरी लर्निंग. उसको आप दिखा नहीं सकते, आप सुनाते हो. Now we talk about the third type of training, this thing. What is that? Kinesthetic. Okay. Here an example. ठीक है, अब ये थोड़ा सा एक्टिविटी करते हैं. मैं आपको एक केस स्टडी सुना रहा हूं, आप लोगों को ब्रेनस्टॉर्म करके आपस में डिस्कस करने का है. Imagine everyone is sitting in a classroom setup and I give you a case study. एक कस्टमर जब गाड़ी सर्विस कराने जाता है तो सर्विस के बाद गाड़ी धुलती है. ठीक, जब गाड़ी धुल के आती तो फीडबैक लिया जाता है कि आपकी गाड़ी की सर्विस कैसी हुई, आप 1 से लेकर 10 तक रेट कीजिए. रेटिंग में कस्टमर ने 8 नंबर दिए, 10 नंबर नहीं दिए, और ये बहुत बड़ा वो है, क्या बोलते हैं, फीडबैक है. तो वहां पे जब पूछा गया कि सर आपने 8 क्यों दिया, तो बोला उसने मेरी गाड़ी धुली नहीं है ठीक से, ये देखो गंदा है, गाड़ी ठीक से नहीं धुली. अब गाड़ी ठीक से नहीं धुली तो रेटिंग अच्छी नहीं है, और वो कस्टमर नाराज भी हुआ कि आपने गाड़ी सर्विस अच्छी नहीं की. अच्छा, एक बड़ा कॉमन सा चीज है, आपने भी फील किया होगा कि जब गाड़ी सर्विस कराने आप जाते हैं और चाहे गाड़ी उसने बहुत अच्छे मैकेनिक ने सर्विस किया हो, लेकिन गाड़ी अगर ढंग से धुली ना हो ना, तो आपको लगता है कि यार गाड़ी सर्विस नहीं की ठीक से. बराबर है ना? अब ये बात क्या हुआ, ये झगड़ा जब हुआ और कस्टमर ने झगड़ा शुरू किया, तो पीछे बात पहुंची सुपरवाइजर तक. सुपरवाइजर तक जब बात पहुंची तो उसने बुलाया कि वॉशिंग वाला कौन है, वॉशिंग को बुलाओ. वॉशिंग वाले को बुला लिया, उसको डांट पिला दी. उसके बाद वॉशिंग वाले को भी बुलाया, वॉशिंग सुपरवाइजर को भी बुलाया, और ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो गया इस
सिचुएशन में कि जो वॉशिंग वाला बंदा है वो जॉब छोड़ के चला गया। अब इमेजिन करिए आप सर्विस मैनेजर हैं जहां पे कस्टमर के वॉशिंग को लेके कंप्लेन है, और यहाँ पे एक वॉशिंग वाला लड़का खड़ा है, उसका एक सुपरवाइजर खड़ा है, एक सर्विस एडवाइजर खड़ा है जो गाड़ी को सर्विस कराने के लिए जॉब कार्ड वगैरह ओपन करता है। आप इस सिचुएशन को कैसे डील करेंगे? So the important thing is here that the customer is not satisfied. ठीक है? Hmm. So rather than going into a quarrel and Let's do a internal role play. introspection, जिगर एक काम हाँ। करते हैं, let's do a role play. आप क्या बनना चाहोगे? आप वॉशिंग गाय बनोगे? कैन यू बिकम, yeah, या sure. सुपरवाइजर बनोगे? मतलब washing guy who's going to defend the हाँ हाँ way सर, he मैंने has गाड़ी washed अच्छे the से car. धोई है, Hmm. मेरी गलती नहीं है, Yeah, sure. ठीक है। नंदन को हम बना देते हैं वॉशिंग सुपरवाइजर, जिसको आप रिपोर्ट करते हो, ठीक है। Okay, सिद्धार्थ let's do बिकम्स दी सर्विस एडवाइजर, ठीक। एंड लेट सिंस आई कैन सी देवप्रिया बिकम्स द कस्टमर केयर मैनेजर, जो सामने लॉबी में होते हैं। जुगल बिकम्स द कस्टमर, जुगल यू बिकम द कस्टमर, ठीक है। नाउ आई वांट द डिस्कशन टू हैपन बिटवीन कस्टमर एंड द सर्विस मैनेजर। आप शिकायत करोगे जुगल, कम ऑन स्टार्ट। Can we start? So who is the customer manager? Who is going to play the customer? I am the customer. देवप्रिया, manager. You're the देवप्रिया दी customer. कस्टमर I केयर am the मैनेजर। So Depriya, I am not satisfied the kind of work you have done. because थोड़ा आपको what I चिल्लाना have है जुगल, just- चिल्लाना पड़ेगा। थोड़ा कैरेक्टर में आओ। कैरेक्टर में आओ। Okay, Depriya, I am not satisfied the kind of work you have done because मैंने सोचा था आप गाड़ी बहुत अच्छी साफ करेंगे और मैंने काफी लोगों से फीडबैक भी लिया था, बट एट प्रेजेंट जो आपने काम किया है उससे मैं संतुष्ट नहीं हूँ। एंड आई हैव डिस्कस्ड विद यू बिफोर डूइंग दिस जॉब कि आप गाड़ी में ये काम करना है और उसमें ओके देवप्रिया, आपका जवाब। अप्रोच। Hi sir, how are you doing? I'm really sorry that आपको सर्विसेज में प्रॉब्लम्स आई। May I know a little more brief कि क्या क्या चीजें थी जो जिससे आपको कंप्लेंट्स हैं? Am I audible? Yeah, There you are was audible. multiple. There is actually Depriya. There was a multiple problem in the car. I had discussed with your manager, with your supervisor. Still, he was not focusing during when you are doing your job. Still, your workers were not focusing what I suggested them to do in the car. All right sir, let me just And- check with my team. Just sorry is give not me a solution. moment. Let me just check with my team. Yeah. नाउ देवप्रिया गोज टू द सर्विस मैनेजर सिद्धार्थ। अब आप इनको सिचुएशन समझाएं, क्या हो गया? हाँ जी सिद्धार्थ जी, क्या हो गया? आप बताओ ना उनको क्या हुआ। आप अच्छा, उनको मुझे अपडेट कर बताना है? देगा कि अच्छा, सर okay, okay. कंप्लेंट आई है। अच्छा, got it. हेलो, सिद्धार्थ जी की क्लास लगानी है। हाँ मतलब ठीक है। सो एक कंप्लेंट आई है, एक कस्टमर इज लाइक वेरी मच अनसेटिस्फाइड विद द सर्विसेज वी हैव गिवन हिम, एंड उनका हर चीज में कंप्लेंट है कि ये चीज नहीं हुई। उन्होंने प्रॉपर एक लिस्टिंग हमें दिया था, वॉशिंग नहीं हुई है, मेंटेनेंस नहीं हुआ है। क्या मतलब, आई जस्ट नीड टू नो कि व्हाट वेंट रॉन्ग। प्लीज डू एन आरसी सिद्धार्थ। Okay. So madam, anything specific that the customer is told? So the customer has said that everything has been mismanaged, Okay. everything was mishandled, mismanaged, and he is not just satisfied with the overall services. Okay. So nothing in specific that he has told to you. Not yet. Okay. So let me get back to my team and then see what exactly has happened on the floor and then Yes. get back to you. Yes, please Okay, do the okay. needful. ओके, जस्ट टू सेव ऑन टाइम यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक करते हैं, ठीक है। सो द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस रोल प्ले, तुम्हें रियल लाइफ सिनेरियो है। आई वाज ट्रेनिंग विद रेनो, सर्विस एडवाइजर्स की ट्रेनिंग हो रही थी, जहां पे ये बात हो रही थी कस्टमर के कंप्लेंट्स बहुत आ रहे हैं, उसको रिड्यूस कैसे करें। सो वी डिड अ रोल प्ले जहां पे वॉशिंग के इस तरह की कंप्लेंट बहुत आती है। कस्टमर रेज देयर वॉइस, दे शाउट ऑन टॉप ऑफ देयर वॉइस कि गाड़ी नहीं धुली मेरी, क्या है ये। और Just one doubt. कस्टमर मैं बताता। I didn't get कि ये कुछ पर्टिकुलर कंप्लेंट था या फिर ओवरऑल एक्सपीरियंस ही था? सिंपल, गाड़ी साफ नहीं धुली है,
गाड़ी सब तो वॉशिंग का मेरी कंप्लेंट गाड़ी, था ना, हाँ वॉशिंग का कंप्लेंट I've है। been a तो customer of वही that तो वही kind. उनका क्वेश्चन था I ना have कि मैं done आपको, this. एनीथिंग I have स्पेसिफिक। done हाँ this. I've been a हाँ customer तो of that I kind. have done this, by the अच्छा, I've way. been a you have done customer that. of that kind. So हाँ सो अभी क्या टाइम थोड़ा कॉन्स्टेंट है इस करके मैं सीधा मेन मुद्दे पे आता हूँ। तो हुआ क्या कि इस रोल प्ले में मैंने क्या किया, 2-4 पार्टिसिपेंट्स को उठाए और चलो भाई तुम सर्विस मैनेजर बनो, ये बनो। अब सर्विस मैनेजर जो है वो वॉशिंग सुपरवाइजर को डांटना, वॉशिंग वाले को डांटना शुरू कर देता है। वॉशिंग वाला जो है एक लेबर होता है जो दिन रात मेहनत करता है, थोड़े पैसे कमाता है। ये लोग जो है बहुत सेंसिटिव होते हैं, इसको 4 गालियां सुना दो तो ये ना छोड़ के भाग जाते हैं। तो ये नौकरी छोड़ के चला गया। अब ये आपके लिए बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। तो इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करोगे? तो हम सिखाते हैं कि एज अ सर्विस मैनेजर आपको वाई एनालिसिस करना है कि भैया उसको बुला के पूछो गाड़ी क्यों नहीं धुली। तो वो आपको बताता कि सर गाड़ी इसलिए नहीं धुली, पानी का प्रेशर कम था। पानी का प्रेशर कम क्यों था? क्योंकि सर मोटर ठीक से नहीं चल रही। मोटर क्यों नहीं ठीक से चल रही? क्योंकि सर इलेक्ट्रिसिटी का जो है प्रॉपर लोड नहीं आ रहा है, लोड नहीं आ रहा है करके वो कम चल रही, इसलिए प्रॉपर उसमें जो होता है ना प्रेशर नहीं बन पा रहा। करते करते पता ये लगा कि भाई साहब इवेंचुअली गलती किसकी है? वॉशिंग वाले की गलती नहीं है, गलती है इस मोटर की जिसको चेंज करने की जरूरत है। सो द प्रॉब्लम हियर वाज नॉट द मैन, द प्रॉब्लम वाज मशीन। हाउ डिड वी गेट इनटू दैट कंक्लूजन? बाय एनालाइजिंग। तो अगर मुझे किसी को ये सिखाना है, आई यूज दिस काइनेस्थेटिक, ये बोलते हैं ना काइनेस्थेटिक method Correct, to correct. do a role play, to put them into that situation, do a little brainstorming, and that's where when they experience it, they learn. You got it? तो ये तीसरे टाइप का स्टाइल था। आई एम श्योर आप लोग करते होंगे। देवप्रिया, आप मेडिकल लाइन से आप करते होंगे इससे जस्ट ज्यादा। वांट टू शेयर वन थिंग, हम काइंड ऑफ रोल प्ले बट हम एक एक्टिविटी करते हैं एंड एक्टिविटी में ना हमारा एक है बिहाइंड द बार्स। सो बिहाइंड द बार्स में हम एक रियल लाइफ कोर्ट सीन बनाते हैं। एक हम प्रोसिक्यूटर रखते हैं, एक हम रिस्पोंडेंट रखते हैं। सो बेसिकली हम डिपार्टमेंटल चीजें करते हैं। जस्ट शेयरिंग दिस आउट ऑफ दिस, बट लेट मी नो कि ये उसी ट्रेनिंग उसमें आता है, मेथड में आता है या नहीं। सो क्या करते हैं कि हमने एक डिपार्टमेंट में एक रिप्रेजेंटेटिव बनाया और हम उस डिपार्टमेंट के पॉजिटिव एंड नेगेटिव्स करते हैं कि एक रिप्रेजेंटेटिव है, उसको कंप्लेंट के उसमें भी हम जेके जाएंगे और फिर वो अपने आप को डिफेंड करेगा एंड फिर अपने रियल लाइफ एविडेंस शो करेगा कि जो जो उस पे इल्जाम लगे हैं, जो जो उस पे उस पे क्या कहते हैं उसको, समझ गया। लाइक उसको जो भी एक्यूज किया गया जिन जिन चीजों के लिए, उसको कैसे उसने रिजॉल्व किया है, जस्टिफाई किया है। सो वो रियल टाइम अपने प्रूफ्स दिखाएगा, एविडेंसेस दिखाएगा। सो फिर द अदर पर्सन ऑफ द सेम डिपार्टमेंट हु इज नॉट एन एचओडी, हम उसको एक दिन का सीएम जैसे होता है ना, तो एक दिन का एचओडी टाइप्स का बनाते हैं। ठीक है, तो वो फिर उन सिचुएशंस को हैंडल करता है उसकी पोजीशन लेके। सो इट इज लाइक दैट। ठीक है, तो इट इज द सेम काइंड ऑफ fun. This is so much Yeah. fun. हाँ, इट इज फन और इसमें लड़ाइयाँ भी बहुत होती है। ठीक है। okay, Eventually, so there are 2 examples that you have quoted, Yeah, which is debatable. Devpriya, I have a question regarding the explanation which you have given. In that, Kalyan, can we? any decision will be given in that, or it's only like all the people enjoying all the rules? नो नो नो, देयर इज अ पैनल जो पूरा जज करता है और वो पैनल हमारी सीनियर लीडरशिप टीम होती है। सो इट इज लाइक अ डॉकेट काइंड ऑफ अ थिंग कि डॉक्टर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ बैठता है एंड दे एक्सचेंज रोल्स एंड देन जिनको भी प्रॉब्लम्स है वो फिर एक अगेंस्ट और एक डिफेंडेंट की साइड से एक प्रॉपर एक कोर्ट सीन की तरह उसमें एक्ट करते हैं। सो वो प्रॉपर पैनल बैठता है जो जज करता है, फिर लास्ट में वो अपना जजमेंट सुनाते हैं। Correct. Very nice. So It is not like a one day activity. it's It a is clear a 2 role to 3 play. days kind of. Barabar. Similarly, in our leadership training, we conduct the role plays like team leader, team member, how they behave with each other, and what scenario और होना चाहिए। जैसे कोई ठीक है। इंक्रीमेंट हो गया, डिससेटिस्फैक्शन है, how the team member approaches to his team leader, और उनको बराबर। कैसे करना चाहिए, how to put their views with team leader। उसमें ये सब we also conduct this such kind of role plays.
ठीक है. Right. So now I what think we'll do is everyone is we'll doing move on mock drills, right? because we have had enough examples to understand the concept. Siddharth, I'm sorry. You know, I have debatable no examples that no you have given. One under visual was no you said it can be a video which is being played that I see and learn, or it can be a static presentation which I see and learn. I think that doesn't come under visual. which one? Static presentation. Something It that I've does written come. on the presentation and I see I don't learn anything by seeing that. Or that No, comes into auditory, if I'm not wrong. instant Siddharth, the YouTube video is a combination of visual and auditory, And but then the I do agree. Huh. Okay, YouTube video is fine. I'm talking about correct. a The presentation. static presentation is visual. It's not visual. That's what I'm Because saying. It see, cannot be visual. I'll give you the presentation, but there is no explanation for that presentation. मतलब मैंने बस आपको जैसा चलो GDPR का policies है, okay? I give you the presentation and I tell you after you go through this presentation there are few questions you have to attempt. If you pass 80% हो गया completed. Yeah, Kathy, I want to interrupt here. He is saying learning by seeing or watching. Okay, let us go word by word. Learning by seeing or watching. I'm seeing a presentation. I'm not learning anything. Now the Watching the presentation presentation, I'm not differs. learning If that presentation is cartoon with Can a I- thought can I- block. can I- Just a minute. It is Can I- something can I that have- I'm hearing and I'm learning. So it comes under auditory is what I Okay, guys. I'll clarify Siddharth's doubt here. Siddharth, you've seen that movie? Nandan wants to say something. I'll come to Nandan as well. I have a very good example. Yes. 1 minute. Yes, Jugal, one sec. You have seen that movie Pushpak, Siddharth? मतलब you must have seen the movie Tare. You must have seen the movie Tare Zameen Par. Yeah. Tare Zameen Par. Tare Zameen Par. हाँ जी. Yes, yes, So we the are type of listening. training was Amir Khan was analytic learning. ठीक है. That's a Good best example. example of that learning. Nandan, आप कुछ कह रहे थे, please. So normally, do you see a hoarding as well? What is that? Then information they are sharing with us, right? Absolutely. Isn't it? So it's visual as well, right? But that is not learning now. No, but that is That's not it could be learning. part of your learning as well. No. Wait. It is learning. आपने कभी learning. अगर अमूल बटर का होर्डिंग देखा हो, Exactly. they drive उस amazing. पे जो कोट होते हैं ना वो लर्निंग होती है हमारे लिए. Just वो to give you learning one है. more- You Right. relate to the Quotes current होते हैं affair. उसके ऊपर. You learn about current. For example, MLA is coming in your neighborhood to cut a ribbon or something like that. It's a learning na कि वो आने वाला है. हाँ, So you you learn connect something. with it. I'll defy the It's statement. still learning. But it's an I'll defy the information statement. being shared, right? I'll defy It's a the learning statement. Learning has A a broader. piece of information learning cannot be is a broader learning. concept. It cannot be learning. I'll defy the statement based on the definition of learning. Where No, we spoke about definition of Yes, learning. learning is Literate word relative se mat jao, change but in the behavior, as right? information So how one can sec, a guys, piece of please. information can be learning? SOP literate word se mat presentation. jao. And No, information okay, Presentation of any learners, SOP. learner, That can I so learning. much, styles. I so much wish Preeti Kaushik was here. I have a doubt, and that has become a debate now. Come on. अच्छा that is okay. सिद्धार्थ, It's a good doubt. I'll Guys, just tell you guys. one thing. अपना reviews में you have graphs, you have graphical pie chart. Now somebody has done the review, they have forwarded you the presentation. For you as a leader to understand how your team has performed, you learn through that graph ki how much they have achieved, how much they have not. Absolutely. The reports are there, right? Fantastic, Kathy. Thank you so much. So that That's- is learning. You see it and you derive an information out of it, and you analyze it and comprehend it and draw a conclusion out of it. You are learning. Again, as you said, You are- What type of information learning? out of it. Okay. Wait. ये क्या debate चलता टाइप है रहेगा। लर्निंग का वो भूल जाओ. ये debate चलता रहेगा. If I नहीं am कौशल, sending- सिद्धार्थ नहीं, हम लोग को नहीं, कॉल भी करेगा. नहीं, सिद्धार्थ कॉल कर लेना. No, नहीं. if I'm sending you the presentation and you're हाँ. seeing the presentation and learning, then it is visual. I do agree. Yes, But yes. if if my presentation is on and I'm speaking, No, and then that is a combination. All right. That is a combination Any of story, any visual. movie. What do you get out of a movie? Right? बराबर. ये कैरेक्टर था, उसने ये रोल प्ले करा, फिर ये हुआ. वो visual बन जाएगा. Eventually you learn ना कि ऐसा हुआ तो वो वैसा result निकला. Whatever the moral of the story is, right? Isn't it? No. No. Nandan, from a movie, we can get a message. But this is the Kaushal which he is talking about is the learning styles. You know, there are visual learners, Correct. audio That is correct. learners, okay, That is and kinesthetic learners. But that,
ओके Okay, आप and छोटे बच्चे auditory को कैसे learners. लर्निंग बताते हो बेटा आपने क्या सीखा इससे what you've No, no, learned no. from this Actually, the this topic act was, how do you make them learn right okay apple को True, red दिखा रहे हो true. तो red क्यों दिखा रहे हैं he That's connects with the color right कि true. True. What you said is true. But there are different types of learners. See, I think if you remember Dr. Raghavi's session, there is an adult learning principles are there. Why they have separated adult learning principles? Because I like to interrupt you here that is perfect what you are saying but वो adult learning के perspective से देख रहे हो फिर आप I am only talking about learning. No. I just wanted to tell why there is a discrimination in the learning styles of children and adults. I just wanted to bring you, I just wanted to notice that one. Okay. And the thing is, here the learning styles, kinesthetic is the learners, once they do that, once they practice that, that's how they can learn. That's what I wanted to tell. Kinesthetic learners are, they can only learn once they do the demo or once they act that the thing what they wanted to learn. Okay, that's right. But we were talking about visual, as Siddharth rightly mentioned in the beginning. Let's cut this. Let's break it. Okay. I'll summarize it. See, guys, first thing. कल हमने जो सेशन किया था आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों ने लर्निंग का अलग अलग डेफिनेशन दिया है राइट लर्निंग का एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन हमने पढ़ा है जो अभी सिद्धार्थ ने भी बताया बट लर्निंग को हम एक सिर्फ एक डेफिनेशन में नहीं बांध सकते सो देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ लर्निंग देयर आर वेरियस डेफिनेशंस ऑफ लर्निंग जो नंदन कह रहे हैं वो भी बात सही है जो कल्याण कह रहे हैं वो भी बात सही हम सबकी बात अपनी अपनी जगह पे अपने अपने कॉन्टेक्स्ट में सही है कोई गलत नहीं है learning could happen through various methods there are various learning styles like visual and auditory so हमें इस कॉन्सेप्ट को हम क्यों पढ़ रहे हैं ये समझे हम इस कॉन्सेप्ट को इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि जब आपके ट्रेनिंग रूम में बहुत सारे डिफरेंट तरह के लोग होंगे कोई किसी तरह से सीखेगा कोई किसी तरह से सीखेगा तो मेरे को ये देखना जरूरी है कि मैं कौन सा मेथड यूज कर रहा हूं जिससे मेरा जो आउटकम एक्सपेक्टेड है वो आउटकम निकल के आना चाहिए मैं विजुअल मेथड यूज कर सकता हूं लेकिन वो तभी सक्सेसफुल है जब उस विजुअल मेथड से एक आउटकम जो मैं चाह रहा था वो निकल के आए तभी तो वो कामयाब है इसीलिए हमने बोला एडवांटेज भी है डिसएडवांटेज भी है एडवांटेज ये है कि जब आप कोई चीज देखते हो तो उसको अच्छे से रिटेन कर पाते हो एज कंपेयर टू लिसनिंग इसलिए आप लिसनिंग विजुअल हर चीज का मिक्स करते हो ताकि देखना सुनना ये सब तरीके से क्या है एक लर्निंग जो है थोड़ा सा और पुख्ता हो जाए थोड़ा उसी पॉइंट में आई वाज ट्राइंग टू डिबेट कौशल सॉरी So I have a question here. My question is that we have studied another subject that you have to go through and understand कि आपके जो ट्रेनीज है उनका क्या एक्सपीरियंस है क्या स्टाइल है and what is the setting up the context for the training so does that impact what kind of majority training style you will follow whether you will have more of kinesthetic more of role plays or you will have more of PPT you have so how do we reach that I'm sure there'll be equal or maybe majority so उसमें आउटकम कैसे अचीव होगा मैं बताता हूँ आपको जैसा कि हमने शुरुआत में डिस्कस किया कि आप कौन सा मेथड चुन रहे हैं वो बहुत सारी बातों पे डिपेंड करता है कि सिचुएशन क्या है दूसरा आउटकम क्या चाहते हो फॉर एग्जांपल एक छोटा सा नया रिलीज है कुछ नया फंक्शन आया है आप सपोज एक सॉफ्टवेयर है एक सॉफ्टवेयर का एक छोटा सा अपडेट आया है और उसको जानने के लिए आपको पूरे 2 घंटे एक दिन की वर्कशॉप नहीं करनी 5 मिनट की ब्रीफिंग देनी है या फिर एक सिंपल एक इन्फोग्राफिक ईमेल के माध्यम से अगर आपने भेज दिया तो लोगों के लिए वो जानकारी काफी है वो सीख जाएंगे ठीक ये एक तरीका है सिखाने का डिपेंडिंग ऑन कि क्या अपडेट देना था ना अगर मुझे बहुत बड़ा चेंज लाना है किसी भी बिहेवियर में या अपग्रेड करना है फॉर एग्जाम्पल लीडरशिप ट्रेनिंग फॉर एग्जाम्पल
जहां पे आप बहुत सारे रोल प्ले सिमुलेशंस करते हो, केस स्टडी देते हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग करवाते हो, क्या ये ईमेल के थ्रू हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो एज अ ट्रेनर आप अपनी बुद्धि खुद लगाते हो कि भाई कौन सा मेथड यूज करूंगा तो आउटकम सही आएगा और इंपैक्ट भी मैक्सिमम होगा। ये आप कॉमन सेंस के थ्रू जज कर लेते हो। कैसे जज करते हो? आप सबसे पहले आउटकम को विजुअलाइज करना शुरू करें। कैसा? बिगिन विद एंड इन माइंड। आपको चाहिए क्या, उसको जब आप विजुअलाइज करने लगते हो तो ऑटोमेटिकली कौन सा मेथड सही रहेगा वो आप ऑटोमेटिकली डिसाइड कर पाते हो। ठीक। और अगर आपको लगता है कि सिर्फ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से बात नहीं बनेगी तो एक उसमें आप स्टोरी भी डाल देते हो, क्योंकि उसमें फील लाना है। उसमें एक वीडियो भी डाल देते हो। मैं एक एम्पैथी का वीडियो डाल देता हूं तो उसे लोग फील करने लगते हो, एम्पैथी वाले भाव को। ये सारी चीजें हैं। We will not discuss on this further. So, here- say, I want to give an example here. So, what I consider as visual learning is something that Dr. Raghavi shows on the presentation. जो graph या pictorial जो तरीके से बताते हैं, that is visual presentation. I do agree. But what Anita Madhav does is she only writes on the slides, which I don't consider to be a visual presentation because I don't get to see and learn anything from there. I only hear what she's talking and that gets into my memory. That's it. So that is auditory learning. And as a person आप देखिए, हम में से हर एक व्यक्ति यहाँ जो बैठा हुआ है वो अपना अपना लर्निंग स्टाइल पहचानता है। Yes or no? True. Yeah, somewhere. जी। तो ये Hello. जी रत्नेश। Can I add one point here? जी, ये वन लास्ट पॉइंट होगा, उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पे। Yes, बिल्कुल। The best way of learning is kinesthetic learning, right? In that learning, we are learn from by doing, right? And the best and successful. Okay, I think we cannot hear you. सबसे ज्यादा अच्छा है ना कि वहाँ कुछ करके सीखते हैं, जैसे कि हमने not always रत्नेश, डेफिनेशन जाने विजुअल थ्योरी के, तो ये सक्सेसफुल पॉइंट है ना, सबसे ज्यादा हम कुछ प्रैक्टिकल करके सीखते हैं। बराबर। देखिए, नॉट ऑलवेज, मैंने क्या बोला, सिचुएशन क्या है इस पे भी डिपेंड करता है। आप हर ट्रेनिंग के लिए, हर एक स्किल को सिखाने के लिए काइनेस्थेटिक का यूज नहीं कर सकते हैं। आपको मेथड्स चेंज करते रहने पड़ेंगे डिपेंडिंग ऑन आप कंप्लायंस की ट्रेनिंग कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, आप एबैक एएमएल की ट्रेनिंग कर रहे हैं, क्या आप उसको काइनेस्थेटिक करके सिखा सकते हैं? नहीं। तो डिपेंड करता है क्या सिचुएशन है, क्या बताना या सिखाना चाह रहे हो। वो आउटकम पे डिपेंड करता है कि यार आउटकम अगर आपको सही लाना है तो आप सही मेथड यूज करें। हर जगह आप एक ही तरह का मेथड नहीं इस्तेमाल कर सकते। सो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, ये हो गया। तो हमने अभी सिर्फ क्लासिफिकेशन समझा कि भाई ये होता है। अब इसमें अप्रोचेस भी हैं। अप्रोच क्या है? ट्रेडिशनल अप्रोच है, एक्सपीरियंशियल अप्रोच है। जो अभी रत्नेश बात कर रहे थे, ये एक्सपीरियंशियल अप्रोच था। ठीक। सो लेट्स टॉक अबाउट दैट नाउ। कौशल, जस्ट अ मिनट। Just I will take your only 1 second. So can we say that kinesthetic learning is a combination of auditory, visual and physical? बिल्कुल। It's a kinesthetic combination of learning visual. is a combination of auditory, visual and physical. Auditory Absolutely. and physical. However, yes. However, the person himself is involved in that action. So what He's you've been applying saying, that. what you've been doing. Sorry to interrupt. What you've been It's saying, a practical approach. What you've been doing, Yes. it actually comes down to kinesthetic. अभी जब रोल प्ले हमने किया, आप देखो तो आप वहां पे उस समय जो रोल अदा कर रहे थे, आप उस माइंडसेट में थे ना। यू आर एक्सपीरियंसिंग दैट योरसेल्फ, दैट केस स्टडी। आपने केस स्टडी दूर से नहीं देखा, आप खुद उस सिचुएशन में थे। यू आर एट द सेंटर ऑफ दैट सिचुएशन। दैट इज काइनेस्थेटिक। The best example I feel is cinema actors before becoming the actors learning. Yeah, Kalyan, we can go on and share a lot of examples. I'm sure we all have understood what is visual,
what is kinesthetic and what is auditory. How- Let's move on now. ठीक है, एक let's बात move on. कौशल मैं बोलना चाहूंगी with your permission. तो Yeah. I have heard all the conversation what was going on. एक बात समझना में ये बहुत जरूरी. It's very imperative for us to understand. If I'm a kinesthetic learner, मतलब मेरा दूसरा सेंस भी काम कर रहा है. I am seeing, I am hearing, I'm feeling as well. But I learn more better by doing something. So हमको डिफरेंशिएशन में ज्यादा नहीं जाना है कि हमारे विजुअल लर्नर्स है या ये डोमिनेंट स्टाइल क्या है हमारी ट्रेनिंग का, ये समझना है. अगर आप सभी ट्रेनिंग से हो, हमारी ट्रेनिंग जो हम कंडक्ट करते हैं इज नेवर वन स्टाइल. Absolutely. अब मुझे कोई सीरियस कुछ चीज बतानी, मैं वहां पे डांसिंग करके ऑफ कोर्स नहीं बता सकती. बट उसका मुझे इम्प्लीमेंटेशन करना, वहां पे मैं ह्यूमर लाऊंगी, वहां पे मैं काइनेस्थेटिक लाऊंगी. सो दैट कम्स इनटू द पिक्चर. सो यहाँ पे जो डिबेट हो रहा था ना, ये सीइंग है या ये हियरिंग है, दैट परहैप्स राइट नाउ शुड नॉट बी द कंसर्न. हम इसे कैसे अप्लाई करेंगे केस स्टडीज में, दैट शुड बी अ मोर मेजर कंसर्न. Absolutely. Totally depends Thank you, what type Sadaf. of combination Thank you, we need Sadaf. to use in our Thank you training. very Now, much. if You I have an summed it audience, up. if I have an audience who is of perhaps a CEO or age of 40s and 50s, अब मैं उनको ये तो नहीं बोलूंगी hands up and hands down, of course. Correct? I need to bring in case studies for my people. अगर मैं यही college good students होंगी, of course I can do some of the things. Come on, let's move around. So I really have to be conscious on my cognitive level to understand this. What sort of people I am dealing with it. Correct. तो इसमें ना पढ़ते हुए कि विजुअल, इतना समझना, विजुअल लर्नर्स वो होते हैं जो देख के जल्दी समझ जाते. जो जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को ऐसा ये बुक दे देंगे ना, इट्स जीरो, गधा, काला अक्षर गधा बराबर वाला है. But if you present this information in the form of flow chart or graphical, that's what I keep asking all the professors. What is in it for me? क्या question आएगा तो मेरे को structure मिलेगा. So that's how it is. Yeah. I'm Good. totally with you, ठीक Sadaf. है. Great. So इससे आगे अगर हम बढ़े तो इसमें अप्रोचेस भी आते हैं. अप्रोचेस बेसिकली दो तरह के, यहाँ पे ट्रेडिशनल अप्रोच और एक्सपीरियंशियल अप्रोच, और तीसरा है बेसिकली परफॉर्मेंस बेस्ड अप्रोच. सो ट्रेडिशनल अप्रोच क्या है? ट्रेडिशनल अप्रोच है आप एक क्लासरूम में बिठाते हैं, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन देते हैं, ये ट्रेडिशनल अप्रोच है. दूसरा अप्रोच क्या है? एक्सपीरियंशियल अप्रोच. एक्सपीरियंशियल अप्रोच में आप अलग अलग तरीके से लोगों को इन्वॉल्व करते हैं सिचुएशंस में, केस स्टडीज में. प्रॉबेबली आप उनसे ग्रुप डिस्कशन करवाते हैं, जैसे कि देवप्रिया ने एक एग्जांपल दिया, वो एक एक्सपीरियंशियल मेथड था, एक्सपीरियंशियल अप्रोच था, सॉरी. सो ऐसे ही रोल प्ले सिमुलेशंस, एक्टिविटीज, brainstorming, group discussion, all these are experiential approach, which is used in different scenarios depending on what is outcome you want to achieve. And third is a performance based approach, जिसमें training goals are measured and evaluated by virtue of attainment of a given level of proficiency and attainment of some specific observable or measurable skill or a task. मतलब इसमें क्या है? You do a mock presentation or a mock practice. उस mock practice को आप parameters में evaluate करते हैं. For example, demonstration of any product. For example, taking up an inbound or outbound call, जहां पे कॉल फ्लो आप फॉलो करते हैं. ओपनिंग कैसा होगा, ग्रीटिंग कैसा होगा, होल्ड का प्रोसेस क्या है, आप उसको सिखाते हो. तो उसमें मॉक कॉल आप प्रैक्टिस करवाते हो, उसको एक पैरामीटर में इवैल्यूएट करते हो. दिस इज ऑल्सो परफॉर्मेंस बेस्ड अप्रोच. ऐसा भी आप ट्रेनिंग करते हैं ना? सेफ्टी ट्रेनिंग करते हैं ना? हाँ, सेफ्टी ट्रेनिंग फॉर एग्जाम्पल. हाँ बराबर. अब उसको देखते हो, अच्छा चल तू करके बता, मैं देखता हूँ, है ना? यू ऑब्जर्व, अच्छा इसने ये सही किया, ये सही किया. मॉक ड्रिल टाइप्स का करते हैं ना? एग्जैक्टली. यू आर मेजरिंग देम on a certain parameter and evaluating them, and after the evaluation आप उसको feedback देते हो कि ये सही था, ये गलत था, ये बढ़िया था, ये और अच्छा हो सकता था. This is also a form of training which is called performance based approach. ठीक? So this was your traditional and experiential. इसमें और भी एग्जांपल दे सकता हूँ. जैसे एक लार्ज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, उसको अपने एम्प्लॉयज को ट्रेन करना है नए कंप्लायंस पॉलिसी पे, तो वो एक ट्रेडिशनल अप्रोच यूज करते हैं कि क्लासरूम स्टाइल ट्रेनिंग करेंगे. उसमें एक इंस्ट्रक्टर होगा, इंस्ट्रक्टर जो है पावर पॉइंट के माध्यम से लेक्चर के द्वारा समझाता है कि भाई हमारी कंपनी के ये पॉलिसी है, अभी आरबीआई के ये रेगुलेटर चेंजेस आए हैं
और इस चेंजेस की वजह से ये केस स्टडी है, इसकी ये एप्लीकेबिलिटी है। ठीक, ये अप्रोच तब सुटेबल है जब इंफॉर्मेशन जो है, मतलब आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन पास ऑन करना है, डिसेमिनेट करना है यूनिफॉर्मली टू अ लार्जर ऑडियंस इन अ स्ट्रक्चर्ड मैनर। तो ये तब बेनिफिशियल है जिस टॉपिक में क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ रूल्स, पॉलिसीज और प्रोसीजर्स चाहिए। ये इसका एप्लीकेबिलिटी है। टॉकिंग अबाउट एक्सपीरियंशियल ट्रेनिंग, इसमें एक एग्जांपल ले देते हैं कि एक टेक कंपनी है जो अपने एम्प्लॉयज का टीम वर्क एनहांस करना चाहती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को एनहांस करना चाहती है। तो उन्होंने क्या किया, एक टीम बिल्डिंग रिट्रीट ऑर्गेनाइज किया, सबको बाहर लेके गए, ठीक है, आउटडोर एक्टिविटी करी, ग्रुप चैलेंजेस किए जिसमें आप प्रोबेबली बहुत सारे एक्टिविटीज करते हैं, सिमुलेशंस करते हैं, और इस एक्सपीरियंस से एम्प्लॉयज जो है कोलैबोरेट कैसे करना है, एक दूसरे से कैसे इफेक्टिवली कम्युनिकेट करना है और क्रिएटिवली कैसे सोचना है, इसको वो सीखते हैं। ये एक्सपीरियंशियल ट्रेनिंग है। तो इसका एप्लीकेशन जो है वो वो कौन से एनवायरनमेंट में या कौन से सिचुएशन में सही रहेगा, जब आप किसी को सॉफ्ट स्किल सिखाना चाहते हैं, सॉफ्ट स्किल डेवलप करना चाहते हैं, लीडरशिप स्किल के ऊपर ट्रेन करना चाहते हैं, या पॉजिटिव कंपनी कल्चर के ऊपर ट्रेन करना चाहते हैं, जहां पे आप पार्टिसिपेंट को एंगेज करते हैं हैंड्स ऑन एक्टिविटीज में, बराबर। तीसरा है आपका परफॉर्मेंस बेस्ड ट्रेनिंग, जिसमें एक एग्जांपल लेते हैं, एक रिटेल चेन है, ठीक, उनको एक नया सेल्स ट्रेनिंग प्रोग्राम लॉन्च करना है। तो इंस्टेड ऑफ ट्रेडिशनल क्लासरूम सेशन उन्होंने क्या किया, परफॉर्मेंस बेस्ड अप्रोच लिया। सो एम्प्लॉय को कंटिन्यूअसली फीडबैक दिया गया, कोचिंग दिया गया ड्यूरिंग देयर शिफ्ट्स। वो अपना काम कर रहे हैं, एक बंदा उनको ऑब्जर्व कर रहा है और ऑब्जर्वेशंस को नोट कर रहा है, और ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पे वो उनको फीडबैक देता है, फीडबैक देके उसको इम्प्रोवाइज करने की कोशिश करता है। ये एक तरीका है परफॉर्मेंस बेस्ड ट्रेनिंग करने I का। want to add a point here, Kaushal. ये So, experiential training में I am going to do on the job training. Like I'm going to work in a workshop and try to understand how things work, right? Now, if I am going to measure this, I'm going to measure the performance in an experiential training. That becomes performance based approach. Correct? No. So I do something and that is being measured in terms of feedback or in terms of rating, and then finally there's a result or there's an outcome of it. That becomes a performance based approach. मेरा परफॉर्मेंस मेजर किया जा रहा है, but actually कह it's an सकते हैं, बिल्कुल कौशल कह सकते हैं, एग्जांपल कह सकते हैं। सर की क्लास जो होती है, नंदन अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हमें शायद और एग्जांपल की जरूरत नहीं है, सॉरी यार। लेट्स मूव ऑन। नहीं, मेरा कॉन्सेप्ट, दिस इज ओनली फॉर द Concept is that Siddharth brings us back to the concept. हाँ Siddharth, you were saying something. So, Sorry. can I ask something? So, are we Sanjana, actually? I'm so sorry. let Siddharth finish what he was saying. नहीं, Siddharth, this you have a doubt? नहीं, You have a doubt? I do have a doubt. And this doubt is That already. I have a question. नहीं, सिद्धार्थ भाई फेमस हो गए। अरे फेमस करा दिया मुझे, मैं फेमस नहीं हुआ था वहां पर, मैं पता नहीं मुझे डाउट कहाँ से आ रहा Okay, है। Siddharth, if you have a doubt, we'll take it. Otherwise, we'll go to Sanjana. I don't know if I can classify this to be a doubt or a statement, but I'm saying that experiential training mein I'll be doing something on the floor, and if that is being measured and that is being rated, that becomes a performance based training. And feedback given, and feedback given after. And feedback given. So this is a concept. Yes. Correct. Perfect. Got it. Thank you. Yes, Sanjana. I was on the similar line. So, just reframing what Siddharth asked, if at all we are not measuring it, then it is still only the experimental training. Experiential, right? Yes, you may not measure it then, probably at a later stage, at least derive what was the learning outcome. वो फिर ROI में चले जाएंगे, लेकिन हाँ कह सकते हैं आप कि अगर आप उस टाइम उसको मेजर नहीं कर रहे हैं, आप उसको सिर्फ एक्सपीरियंशियल तरीके से कुछ कल्चर, कुछ वैल्यू, कुछ स्किल इंटरनली डेवलप कर रहे हैं, that is experiential. Bingo. So, for example, if I am taking a MDP, managerial development training, which is a continuous 3 months training, like two sessions in a month, 3 months wherein I'm not measuring. I'm doing the initial evaluation, but I'm not measuring. 3 months later, I'll be doing the entire measurement of the improvement. So 3 months later, I'll call it as experiential learning, or I'll call it as performance-based learning. It's a performance because you're already deciding कि 3 महीने के बाद आप करोगे. हाँ, so अगर ये आपके पूरे ट्रेनिंग का पार्ट है कि अभी आप एक्सपीरियंशियल लर्निंग कर रहे हो और बाद में जाके उसको इवैल्यूएट करोगे,
तो ये पूरे ट्रेनिंग का एक पार्ट हो गया ना, ट्रेनिंग प्लान का एक पार्ट हो गया। और अगर वो इस ट्रेनिंग प्लान का पार्ट है तो यस इट इज परफॉर्मेंस बेस्ड अप्रोच, क्योंकि इवेंचुअली आप उस मेजरमेंट को यूज कर रहे हो आगे फीडबैक देके उसको डेवलप करने में, राइट? राइट। चलिए नेक्स्ट कौशल जी, एक बात मुझे जो लग रही है, मैं सबको, हम इस कॉन्सेप्ट्स को ना अलग अलग ना देखते हुए आप इसे एक बहुत बड़े अम्ब्रेला का हिस्सा समझिए। सो ट्रेनिंग, इंस्ट्रक्शन डिजाइन, ये एक बहुत बड़ी अम्ब्रेला है। उसके फैक्टर्स क्या है? हमारे ट्रेनिंग्स, हम भी एज अ ट्रेनर उसके एक फैक्टर है। तो या फिर परफॉर्मेंस, अब कोई भी ट्रेनिंग आप करो, आपने कहीं ना कहीं उसका असेसमेंट लिया होगा कि नहीं? करेक्ट, करेक्ट। बट जहां पे मेरा वो असेसमेंट उसके स्किल सेट में, उसके जॉब रोल में वो इफेक्ट करेगा या फिर उसके केआर में इम्पैक्ट करेगा, वो बन जाएगी हमारी परफॉर्मेंस बेस्ड अप्रोच। तो बेसिकली आप परफॉर्मेंस बेस्ड ना हर ट्रेनिंग में करते हो, आप हर लेवल्स ऑफ ट्रेनिंग्स में, स्टेप्स में आप परफॉर्मेंस असेस करते हो। Sometimes by questions, sometimes by Google Forms, sometimes by peer learning, sometimes by pairing them with each other, questioning techniques. But performance based क्या हो जाएगा? जहाँ पे उनका KRA आ जाएगा, कंपनी बेस्ड स्किल सेट आ जाएगी, जहाँ पे उनको अप्रीजल्स आ जाएगा, वो हो जाएगा हमारा परफॉर्मेंस, जहाँ पे परफॉर्मेंस इम्पैक्ट करने वाला है। Let's go with that simple one word, performance. If my performance is measured, that becomes performance based approach. क्योंकि अगर मैं ये बोलूं कि एक्सपेरिमेंटल में परफॉर्मेंस ये नहीं मेजर नहीं होता, तो दैट्स एब्सोल्युटली रॉन्ग। नहीं, ठीक है, सुनो सुनिए। स्वर्णिम, सो यहाँ पे हमें एक चीज समझने की जरूरत है। देखिए, एक्सपीरियंशियल लर्निंग जब आपने कराया तो आपने उस समय क्या मेथड यूज किया था? अलग मेथड यूज किया था। अब बाद में जाके आप उसको इवैल्यूएट कर रहे हैं, तो उसको आप परफॉर्मेंस बेस्ड अप्रोच में शायद इंक्लूड ना करें, अनलेस वो ट्रेनिंग का एक पार्ट था, आपका प्लान, इट वाज अ पार्ट ऑफ द प्लान। लेकिन अगर मैं आज एक्सपीरियंशियल लर्निंग करा रहा हूं, उनको रोल प्ले सिमुलेशन, ये वो एक्सरसाइज मजा मस्ती करा रहा हूं, उसके बाद 1 साल बाद जाके उसको मेजर करूं, तो मैं ये नहीं कहूंगा कि जी ये तो मेरा परफॉर्मेंस बेस्ड अप्रोच था। आपने बाद में उसको इवैल्यूएट किया और आपने सिर्फ इवैल्यूएट किया, परफॉर्मेंस वन सेकंड जुगल। लेकिन अगर आप कोई ट्रेनिंग ही इस उद्देश्य से करा रहे हो कि मैं आपको ट्रेनिंग कुछ सिखाऊंगा नहीं, बताऊंगा नहीं, आप करोगे, मैं देखूंगा, फीडबैक दूंगा और उसके बाद फिर आप इंप्रूव करोगे, सिर्फ यही एक प्लान है, तो ये I want to add to what you have told, Kaushal. I want to add to what you have told. If I'm giving a training to a set of people and I take feedback in general, that becomes experiential. But if I'm going to take feedback per se, individually, that becomes performance based. Correct. Performance based तो individual भी होगा. Analyzing the feedback. Yes. And then probably working on it as well. Yes, Swarnim. Now we'll come to Swarnim, then Jugal. Jugal also had a point. Me, what I was trying to tell, ki whether this performance-based approach or experimental approach or traditional, that is the technique or tools which we are using to give training. That is, while designing a training program, first we decide, considering our group, ki what kind of tools will be effective. So, according to me, that approach, the selection of the tools and technique, these are given these 3 approaches. Whether we evaluate this training afterwards or during the training, there is another part. That is the evaluation matrix, which we design as a part of our training program. When we are going to evaluate, ऐसे रहता है कि on the job training है, तो on the spot evaluate नहीं कर सकते. That person has to do that job. और फिर एक 8-15 दिन बाद, after taking his team leaders or supervisors feedback, we can make evaluation कि हमारा ट्रेनिंग इफेक्टिवनेस कैसा रहा। बट स्वर्णिम जी कई ट्रेनिंग ऐसी भी होती है जहाँ पे ट्रेनिंग सिर्फ सिखाना नहीं होता है, वहां पे सीधा एक ही टेक्निक यूज किया जाता है कि तू करके दिखा, मैं देखूंगा, ऑब्जर्व करूंगा और तुझे फीडबैक दूंगा, तब तू उसको सीखेगा। तो ये डायरेक्टली परफॉर्मेंस बेस्ड अप्रोच भी यूज किया जाता है कई ट्रेनिंग्स में, स्पेशली जहाँ पे मोटर स्किल्स, जहाँ पे फॉर एग्जांपल असेंबली लाइन में, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं, मैन्युफैक्चरिंग में जब असेंबली लाइन पे काम किया जाता है तो वहां पे एक बार आपको बता दिया जाता है ये ऐसा होता है, फिर आदमी कर रहा होता है, एक बंदा वहां खड़े होकर देख रहा होता है और उसको वहीं पे खड़े खड़े सिखाता है।
इसको ऐसा नहीं, तो वो फीडबैक देके तुरंत वो सिखाता है। दैट इज ऑल्सो परफॉर्मेंस बेस्ड अप्रोच, ठीक है। नाउ इस पे अब हम बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर है। Kaushal, इसमें just चार I would like एक to, हाँ जी I जी would like to भाई only बोलिए। one point. So what I have understood, suppose let's say example, I'm from pharma industry. So I have decided to give training to 10 salespeople on paracetamol. So that is my planning. And then I have told all the doses and mechanism of action. Then I had reviewed. Then I had concluded this is a dose, this is a mechanism of action, this is a side effect. Now after 2 or 3 months, whether my sales team is able to implant that conclusion in the field, that is a performance. So on after 6 months, I will able to get the performance of my sales teams of that training. So जब आपने ट्रेनिंग प्रोग्राम डिजाइन किया था, तो क्या आपने ये जो आपने बाद में जो किया, was it a part of the plan? क्योंकि जब तक वो आपने किया नहीं है, आपका ट्रेनिंग फिनिश नहीं हुआ है। तो अगर आपने उसको प्लान का हिस्सा बनाया था और मैनेजमेंट को प्रेजेंट किया था कि जो मैं ऐसा करूंगा उसके बाद ये करूंगा, तब मेरी ट्रेनिंग कंप्लीट मानी जाएगी, तब तो आप कह सकते हैं कि हाँ ये परफॉर्मेंस बेस्ड है। ठीक, लेट्स गो ऑन। So experiential training is followed by the performance training. Experiential training can be extended, given the training in isolated form, to performance based training. Then we will experiential training can be extended on as the performance based training. However, not all experiential training can be performance based training. ठीक है, so let's move on. इसमें 4 स्टेप्स होते हैं, आपने देखा होगा अगर बुक में पढ़ा होगा, पेज नंबर 4, एक्टिविटी, रिफ्लेक्शन, कंसेप्चुअलाइजेशन एंड एप्लीकेशन। तो एक्सपीरियंशियल लर्निंग कैसे होती है? 4 स्टेजेस में होती है। सबसे पहले आप जब देखते हैं अपने आसपास कि क्या हो रहा है, व्हाट हैपेंड उस एक्टिविटी को करके, जब आप उस एक्टिविटी को करते हैं तो आपके अंदर फीलिंग आती कि क्या सही है, क्या गलत है, इसको और बेहतर कैसे कर सकते हैं, या गलत कहाँ गया। You start reflecting that learning there and then. That's the second stage. Third is findings. तो जब आपने ये फील किया कि ये सही था, गलत था, ये इसको ऐसे करना चाहिए था, तब आप इसको कॉन्सेप्चुअलाइज करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, और वहां पे फिर आप अप्लाई करने की शुरुआत करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, ये समझ में आ गया कि गलती कहाँ है, क्यों हुई, अब उस गलती को सुधारना है। So that's the last stage, application. What do I do next? अगर मुझसे गलती हुई है या इसको इम्प्रूव करना है या ये सही तरीका है तो उसको अप्लाई कैसे करूं, तो दैट इज द लास्ट स्टेज, दैट इज एप्लीकेशन। सो एक्टिविटी, रिफ्लेक्शन, कंसेप्चुअलाइजेशन, एप्लीकेशन। क्या हुआ, मैंने क्या महसूस किया, ऐसा क्यों हुआ, और कैसे इसको बेहतर किया जा सकता है, अब मैं आगे क्या करूं, ये 4 स्टेप्स हैं इसके। ठीक, लेट्स मूव ऑन। अब इसमें इस एक्सपीरियंशियल लर्निंग में वेरियस कैटेगरीज बनाई गए हैं, जैसे ऑन द जॉब ट्रेनिंग। अब एक क्लासिक एग्जांपल मैं आपको देता हूं ऑन द जॉब ट्रेनिंग की, कैसे एक ट्रेनिंग प्रोग्राम में आप पूरा ब्लेंड, ये जितना भी है उसको यूज करते हैं। आप इंडक्शन ट्रेनिंग प्रोग्राम प्लान करते हैं। आई विल गिव यू एन एग्जांपल। मैं जब भी इंडक्शन ट्रेनिंग प्रोग्राम प्लान करता हूं तो मैं 5 दिन का पहले क्लासरूम ट्रेनिंग प्रोग्राम प्लान करता हूं सेल्स वालों के लिए। उस क्लासरूम ट्रेनिंग में कंपनी के बैकग्राउंड के बारे में, हमारे बिजनेस मॉडल के बारे में, हमारे वैल्यू प्रोपोजिशंस जो हम कस्टमर को पिच करते हैं सेल्स वाले, उनको उसके बारे में कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं, जो कि क्लासरूम ट्रेनिंग में। अभी क्लासरूम ट्रेनिंग में जो सीखा, इसको प्रैक्टिकली कैसे सीखेंगे? तो नेक्स्ट 5 days, आफ्टर कंप्लीटिंग 5 days ऑफ क्लासरूम ट्रेनिंग, दे गो टू द फील्ड एंड दे हैव अ बडी। तो एक सीनियर बंदे को उसके साथ अलाइन किया जाता है कि भाई इसको लेके जाओ और इसको फील्ड में आप जो मीटिंग करोगे ये देखेगा आपको। और इस बंदे को जो ओजेटी में गया है, जिसका एक सीनियर बडी हैज अ मेंटर, और ये बंदा है, इसको मैं पकड़ा देता हूं एक चेकलिस्ट, एक शीट, कि तुझे ये सीखना है। ये जाता है, ऑब्जर्व करता है और उस चेकलिस्ट को फिल करता है कि अच्छा इन्होंने ऐसे ग्रीड किया, इन्होंने ऐसे वैल्यू प्रोपोजिशन दिए, इन्होंने ऐसे ऑब्जेक्शन को हैंडल किया। तो जब उस देख के साथ में फिजिकली ऑब्जर्व कर रहा होता कि एक सेल्स मीट कैसे करना है, एक पिच कॉल कैसे करना है, ही लर्न्स दैट इज ऑन द जॉब। ठीक है, तो ये ऑन द जॉब ट्रेनिंग है। आई एम श्योर आप लोग भी यूज करते होंगे। कैन एनीबडी
in this Yes, call yes, Kaushal. can share their real life example Yes. जहाँ पे आप एक OJT Hello, Kaushal ji, can I add one point here? हाँ जी जैसे कि मैं बेबी इंडस्ट्री से बिलोंग करता हूँ, बेबी इंडस्ट्री। तो हम लोग क्या बेबी करते हैं, जैसे कि पहले इंडक्शन करवाने के बाद में जो भी पुराने उसके सेल्स ऑफिसर की जो सेल्स का बंदा होता है, उनके साथ में जो न्यू ज्वाइनिंग होते हैं जाते हैं और पूरे दिन जो टोटल उनकी कॉल होती है, जैसे कि हम लोग TCPC बोलते हैं, टोटल कॉल प्रोडक्टिव कॉल। तो पूरे दिन TCPC किस तरह से वो पंच कर रहे हैं, किस तरह से ग्रीट कर रहे हैं कस्टमर को, किस तरह से कस्टमर को कन्विंस कर रहे हैं, ऑब्जेक्शन हैंडल कैसे कर रहे हैं, सारे पॉइंट्स को ऑब्जर्व करवाते हैं। ठीक है उसके बाद में उनको प्रैक्टिकली उनको फिर हम लोग बोलते हैं कि आप फील्ड में जाओ और आप बराबर फिर अपना काम स्टार्ट करो। हाँ और इस बार उसका सीनियर उसको ऑब्जर्व करेगा। अभी वो सीनियर हाँ, को देख के उसका सीख जो रहा था, ASM होता है, अब ये एरिया करेगा मैनेजर और जो होता सीनियर है, ऑब्जर्व करेगा और यस फीडबैक यस देगा। ये ऑन द जॉब यस ट्रेनिंग है। यस। अब क्या होता है कौशल जी, ये 12 डेज का सेशन होता है, पहले इंडक्शन करवाते हैं। उसके बाद में जो ट्रेनर होता है, जैसे कि सपोज आप ले लो, मैं हो गया, मैं जाऊंगा रत्नेश जी 2 दिन उसके एग्जाम्पल, साथ में अच्छा एग्जाम्पल ऑब्जर्व समझ में करूंगा। आ गया। एक सेकंड एग्जाम्पल समझ में आ गया। अब मुझे एक बात बताइए, जी फायदे जी। क्या क्या है ऑन द जॉब ट्रेनिंग के? व्हाट आर द एडवांटेजेस? देन फायदे विल कम टू डिसएडवांटेजेस फायदे आल्सो। ये है कि फायदे ये हैं कि practically we observe that what they are learned and what they are implementing or not। ठीक है वो क्या सीखा देवप्रिय है वहां पे और कंपनी इम्प्लीमेंट का कर पैसा पा उसका रहा है यार। कि कर पा रहा है। ओके देवप्रिय यू हैव अ पॉइंट? Yeah, I just want to quote an example. Like in healthcare, we do BLS training. So we have a model and we practice on that, and then we ask people to, follow our commands and do the same thing, like experience that how you're giving a BLS training to a person. So that comes in the OJT. Come again, sorry. Because it is a simulation method, na, that we are giving a BLS training to a What is BLS? BLS, basic life support. Huh. So we So- have a model of a person, Correct. and we Correct, actually, yeah, you can classify it as on the job training. Now the key is to understand what are the advantages and disadvantages, क्योंकि आपको दोनों पता होने चाहिए कि OJT कब इस्तेमाल करना चाहिए। I'll give you an example. Now इसी जो एग्जांपल मैंने दिया था उसमें हो क्या रहा था, जब मैंने ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन किया तो मैंने देखा कि इंडक्शन से पहले क्या होता था कि कुछ लोगों की ज्वाइनिंग मंथ के शुरुआत में हो गई है। अब जब तक इनफ लोग ज्वाइन ना कर लें, इंडक्शन बैच आप प्लान नहीं कर सकते। तो ये 4-5 दिन जब वो खाली है, क्या करेगा, तो उसको भेज देते थे फील्ड में। अब हुआ क्या कि क्लासरूम ट्रेनिंग होने से पहले बंदा चला गया फील्ड में, क्या होगा? हाफ नॉलेज disorientation. हाफ नॉलेज, वो गलत तरीके, क्योंकि सेल्स वाले तो अलग जो कॉन्सेप्ट होता है उससे कई बार अलग भी जाते हैं, डिविएट हो जाते हैं, शॉर्टकट मेथड यूज करते हैं, तो गलत तरीके पहले ऑब्जर्व करके आते हैं। तो ये डिसएडवांटेज है। सो दैट्स व्हाई आई सेड एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दोनों हैं। सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ये लेस एक्सपेंसिव होते हैं। ये क्लासरूम ट्रेनिंग को कंडक्ट करने के लिए आपको सेटअप बनाना है, सबको बुलाना है, खाना पीना अरेंज करना है, एक्सपेंसिव अफेयर है, ठीक, खर्चा होता है, बजट बनाना पड़ता है। तो OJT क्या है, लेस एक्सपेंसिव है। बंदे को भेज दो फील्ड में, साथ में बडी अप कर लेगा, सीख लेगा। दूसरा, जो ट्रेनी है वो अपने हिसाब से सीखता है, अपने पेस के हिसाब से सीख सकता है। लेकिन अगर क्लासरूम में बैठा है तो ट्रेनर के पेस से सीख रहा होता है, बराबर है ना? दूसरा स्टेप बाय एडवांटेज स्टेप लर्निंग नहीं हो पाती फिर उसमें। हाँ, लेकिन इसमें क्या है, OJT में वो अपने हिसाब से सीखता है। कभी उसको डाउट हुआ तो खटाक से उसने पूछ भी लिया। तीसरा है, it may turn out to add on indirect cost to the company if it is used too much of the trainer's time and energy for providing the training. तो अगर बहुत ज्यादा ट्रेनर टाइम इन्वेस्ट कर रहा है ट्रेनिंग में, तो ये भी एक एडिशनल कॉस्ट बन जाती है। And Kaushal, one more thing, like अगर इसका डिसएडवांटेज ये भी तो हो सकते हैं ना, like whatever you are seeing, you're just doing it. You are not able to get the real essence कि इसके पीछे लॉजिक क्या है या इसके पीछे सिग्निफिकेंस क्या है। So वो OJT में ही फील आता है। Kaushal, the biggest disadvantage is that No, we are talking about advantages, जुगल, wait, hold on. एक और पॉइंट है इसमें। एक एडवांटेज ये भी है, फॉर एग्जांपल आपने चैलेंज फेस किया होगा
आप ट्रेनिंग करवाना चाहते हो, आप मैनेजर को बोलते हो सर अपने सारे बंदों को भेज दो ट्रेनिंग के लिए, तो वो मैनेजर कहता है अरे यार इन लोगों को भेज दूंगा तो यार ये काम कौन करेगा यार, मेरा प्रोडक्टिविटी मार खा जाएगा। होता है नहीं होता है? यस यस क्योंकि क्लासरूम में आपने सबको बुला लिया, सारे पूरी सेल्स टीम को, अब बाकी मार्केट में जाके सेल कौन करेगा? तो ओजेटी यहाँ पे कामयाब है। ये एक एडवांटेज है कि ओजेटी में क्या है, फर्क नहीं पड़ता है, प्रोडक्शन अपना चलता रहता है, काम भी हो रहा होता है और ट्रेनिंग भी हो रही होती है। ये एक एडवांटेज है। अब आते हैं डिसएडवांटेज पे। अब बताओ डिसएडवांटेज क्या है? सबसे बड़ा इसका डिसएडवांटेज क्या है? इट इज अनस्ट्रक्चर्ड। लेट्स टेक द एग्जांपल. Suppose you are area manager and Siddharth is a medical rep or sales executive, and I am a training manager. So I ask you, what is your objective in terms of improvement of your colleague? But you are not able to give me the objective, your observation. I have to go to the OJT and I have to work on these and these tasks. So due to lack of proper observation, due to lack of proper feedback, recommendation from their superior manager or stakeholders, the OJT is unsuccessful. This is the biggest drawback of OJT. सही है, सही है। Can I add one? या उसमें एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये होगा कि इट डिपेंड ऑन द नॉलेज और एक्सपर्टीज ऑफ दैट बडी which is getting associated with that particular induction person, because it's not guaranteed that every time the buddy which is being allocated is doing all the things in a correct and apt manner. So if he is doing in some wrong way or some wrong ethics he is following, the same can be learned by the new joinees also. Correct. That is one. Guys, what I see is we have a lot to cover in this chapter, because आगे जाके बहुत सारे methods के बारे में बात हुई है, जैसे कि ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, सिमुलेशन, रोल प्ले के बारे में बात हुई है, प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच हैज बीन डिस्कस्ड. सो अभी तक जो हमने डिस्कस किया है पेज नंबर 6 तक ही किया है, एंड वी हैव टू गो अप टू probably page number 20. So shall we break this here and continue tomorrow with other methods? Can we just read? कल हम थोड़ा सा पढ़ के आए इन मेथड्स के बारे में, और हम फटाफट से एक एक शॉर्ट एग्जांपल यूज करके फिनिश कर देंगे इसको. Exactly, हम बहुत ज्यादा स्ट्रेच कर रहे हैं चीजों को, like one or two examples. That sounds better. Every topic. क्वेश्चन Yeah. मैं थोड़ा सा 2 दिन से ऑब्जर्व कर रही हूँ, तो ये मेरा एक सजेशन रहेगा. हम क्या कर रहे हैं ना, टॉपिक आ रहे हैं ना, उस पे ही बहुत ज्यादा डिबेट हो रहा है. So my Right. Too many suggestion would be, examples. Yes. exactly. I agree. So if for example for this session, if caution is coming in being a trainer, so we do be like a good listeners. We listen, we understand, we comprehend, we read the content. फिर जब हम कल का सेशन लेंगे तो हमारे जो डाउट्स होंगे we can keep that in place. 1-2 examples, very much agreed. So here we all are trainers, we understand how important time is. So किसी को I hope offend करने का, I don't think anybody feels over No, here. it makes sense. It makes sense. Sort of, it makes Right? sense. So Jagrati, कल का भी that's the अभी thing. it's at least for me as a woman, मेरा डिनर पूरा बाकी है. घर वाले बोलेंगे ये मत कर, फिर तो घर खाना बना दे. नहीं, कभी कभी थोड़ा It बहुत makes sense. सैक्रिफाइसेस तो Anyways, करना पड़ता है. on a very serious note, if we do this, तो हमको शायद 1-1.5 घंटे में हो जाएगा. We start the session with the doubts of the yesterday's session. Correct. So that was the objective when I started the session. I have created my own notes कि मैं क्या concept पे क्या example दूंगा मैंने. But then क्या होता है ना कि everybody's excitement to contribute. इसको भी हमको respect करना पड़ता है. Very अभी true. मैं सदफ को बोलने दूं, भरत को बोलने ना दूं, या देवप्रिया को बोलने दूं, स्वर्णिम ये को मैं बोलने कल दूं, से समझ रही हूँ कौशल जी, कि कल से देख वो रही भी हूँ मैं. एक कहता है I ना think एक बंदा हाँ, ही lead संदर्भ ले और वही भावनाओं को समझ रहे हैं. we can note But down our Koushal, I points want and to ask add in the here. group. ये देखो अब भरत जी I बोलने want लग to गए, add here, you are सुनना पड़ेगा. managing it very well. Kaushal, you are managing it very well. होता क्या कि दो लोग बोल रहे होते हैं, बीच में से कोई बोल पड़ता है, जब दोनों की कन्वर्सेशन खत्म होती है, then you remember कि कौन सा बंदा बीच में बोला था, उसको बुलाना आता